اور لاہور میں عاشورہ کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پر ختم ہو گیا ہے۔ عزاداروں نے کربلا گام شاہ میں گریہ وزاری کی۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کے موقع پر نکالے جانے والے تازیوں کو نیٹو جیٹے کے مقام پر سمندر پر ٹھنڈا کیا جا رہا ہے۔ ادھر راولپنڈی میں مرکزی جلوس ختم ہو گیا ہے، عزادار آہوزاری میں مصروف ہے۔ اس بارے میں ہم بات کریں گے، لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اب تک کی نمائندہ عمار مظہر کراچی کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں گی اقرا مجاہد بیگ، اور راولپنڈی کا احوال سنائیں گے ثاقب عباسی۔ سب سے پہلے ہم اقرا سے بات کریں گے۔ اقرا، جلوس اختتام پذیر ہو گئے ہیں، دن بھر معاملہ کیسا رہا، کہاں پر موجود ہیں آپ؟ جی، جلوس جو ہے وہ حسینیہ ایرانیہ میں اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سلسلہ شروع ہوا کراچی میں تازیوں کو ٹھنڈے کرنے کا۔ سمندر کے سپرد کر دیے جاتے ہیں وہ تازیے جو محرم الحرام میں تیار کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد عاشورہ کے روز ہی ان تازیوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ شام 4 بجے سے نیٹی جیٹی کے جس پل پہ اس وقت میں موجود ہوں، یہاں پر یہ ایکٹیویٹی جاری ہے کہ ان تازیوں کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جو ہے صبح کے 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ہماری جب بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا، جب ہماری بات ہوئی ہے تو یہاں سے ہمیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تقریباً گزشتہ سال 256 کے قریب مختلف شہروں سے، کراچی کے مختلف علاقوں سے جو ہے تازیوں کو نکالا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اب بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 40 سے 45 تازیے اس وقت تک آ چکے ہیں۔ شام 4 بجے سے لے کر کے اب تک یہاں پہ سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو 2 چیک پوائنٹس ہیں۔ ایک جگہ پولیس جو ہے وہ پولیس نے انتظامات سنبھالے ہوئے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ رینجرز نے بھی اس پورے جو اس برج ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے معاملات کو رینجرز بھی دیکھ رہی ہے۔ جہاں جیسے جیسے علم اور تعزیے کے جو جلوس نکالنے کے لیے، علم اور تعزیے کے جو یہاں پر آتے ہیں نیٹی جیٹی پل پر سمندر کی سپرد کرنے کے لیے جو زائرین آتے ہیں، جو عقیدت مند آتے ہیں، ان کو جلد از جلد کہا جاتا ہے، یہی بار بار وارننگ دی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے اپنے تازیوں کو جو ہے سمندر کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ ایک تو کلیئرنس مل سکے جو دوسرے تازی ہیں ان کو آنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلیئرنس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں وہ سیٹل رہیں اور کسی بھی طرح سے ہلچل یا بے چینی پیدا نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے پولیس کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں، جو تھوڑی لمحے کے بعد جو ہے تمام جو زائرین آتے ہیں ان کو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ جلد از جلد اپنے تازیوں کو سمندر کے سپرد کر دیا جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے تازیوں کو سمندر کے سپرد کرنے کے بعد جو ہے جو زائرین ہیں جو مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں، کراچی کے جونا مارکیٹ، اس کے ساتھ ساتھ لی مارکیٹ، لیاری، کرنگی، لانڈی، یہ تمام وہ ایریاز ہیں جہاں سے آ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو بڑی تعداد میں لیاقت آباد سے جو ہے یہ تازیے نکالے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ لیاقت آباد کے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں تازیوں کو نکالنے کے لیے، یہ تمام جو ایکٹیویٹی ہے جاری ہے، اور صبح 5 بجے تک یہ تمام سلسلہ جاری رہے گا۔ جی ٹھیک ہے، اقرا مجاہد بیگ ہمیں کراچی سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔ اب لاہور کا رخ کریں گے، لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے عمار مظہر۔ عمار، کیا بتائیں گے، آج عاشورہ کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ لاہور میں ختم ہو چکا ہے، اب کیا صورتحال ہے اور پورے دن میں سیکورٹی کی صورتحال کیا رہی؟ ہمارے مظہر تک شاید ہماری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ لاہور میں عاشورہ کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پر ختم ہو چکا ہے، اور جو عزادار ہیں وہ کربلا گام شاہ میں اس وقت گریہ اور وزاری کر رہے ہیں۔ کراچی میں 10 محرم الحرام کے موقع پر نکالے جانے والے تازیوں کو اس وقت نیٹو جیٹی کے پل پر وہاں سمندر پر ٹھنڈا کیا جا رہا ہے، جبکہ راولپنڈی کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ایسے ہی صورتحال ہے، مرکزی جلوس ختم ہو چکا ہے۔ اسی بارے میں ہم بات کریں گے، راولپنڈی سے ثاقب عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثاقب، کیا بتائیں گے، راولپنڈی میں جلوس اختتام پذیر ہو چکا ہے اور دن بھر کیسی صورتحال رہی یہاں پر؟ شیخ صاحب، آڈیو جلوس اس وقت قدیمی امام بارگاہ پہ پہنچ چکا ہے، جو کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا، اور یہ جلوس جو ہے دن 11 بجے کمیٹی چوک سے برآمد ہوا تھا، اور روایتی راستوں پر ہوتا ہوا دن کو 1 بجے فوارہ چوک پہنچا تھا، جہاں پہ نماز ظہرین ادا کی گئی۔ اس کے بعد یہ پرانا قلعہ اور دیگر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت جو ہے قدیمی امام بارگاہ پر پہنچ چکا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہ اختتام پذیر ہوگا۔ اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو دن بھر
पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 6000 से जाहिद जो है पुलिस अहरकात सिक्योरिटी पर मामूर थे। इसके अलावा फ़ज़ाई निगरानी भी की जाती रही हेलीकॉप्टर के ज़रिए और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए थे। तमाम जो रास्ते थे इस जुलूस के उनको खारदार तार लगाकर और कंटेनर लगाकर बंद किया गया था। जो आज़ादार थे इस जुलूस के वो दिन भर सीना को भी करते रहे, जंजीर जानी भी करते रहे और लोहे भी पड़ते रहे। और ये जो तमाम जुलूस थे इंतहाई पुरअमन तरीके से इस वक्त जो है मरकजी इमाम बारगाह में पहुंच चुके हैं। जी ठीक है, साकिब अब्बासी रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से लाहौर का रुख करेंगे, अम्मार से जानेंगे कि आज आशूरा का जो मरकजी जुलूस था उसकी सूरत हाल क्या रही, क्या अपडेट करेंगे अम्मार इस बारे में? आज बिल्कुल लाहौर में 10 मुहर्रम हराम का शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो चुका है। ये जुलूस गुज़श्ता रोज़ रात 10 बजे निसार हवेली से बरामद हुआ था और अपने रिवायती और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ फजर के वक्त मोहल्ला शियाँ पहुँचा, जहाँ पर अज़ान अली अकबर दी गई, जिसके बाद अज़ादरान ने वहाँ पर नमाज फजर अदा की। उसके बाद ये जुलूस अपने रिवायती और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ आज शाम 6 बजे के करीब भाटी चौक पहुँचा, जहाँ से होता हुआ ये लोअर माल पर पहुँचा और वहाँ से यहाँ पर इमाम बारगाह करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्ते पर पानी की सबीलें लगाई गई, लंगर का खुसूसी एहतमाम किया गया, जबकि जुलूस में शरीक अज़ादरान शोहदाए करबला की याद में मातमदारी करते रहे, जंजीर जनी करते रहे, नवाखानी की जाती रही। शोहदाए करबला की याद में मुख्तलिफ किस्म की ज़ियारतें भी जुलूस का हिस्सा रही, जबकि जुलूस की मरकज़ी शबीए जुलजना की ज़ियारत जो है वो भी जुलूस में शामिल रही। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के लाहौर पुलिस की जानिब से पूरे जुलूस के रूट पर इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। तकरीबन 300 के करीब CCTV कैमरे जुलूस के रास्तों पर नस्ब किए गए, जिसको सेंट्रल कंट्रोल रूम में जो है उसका जायज़ा लिया जाता रहा। लाइव फीड के जरिए से सिक्योरिटी कैमरों से जो है लाहौर पुलिस की मरकज़ी इंतजामिया जो है वो उसका जायज़ा लेती रही। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरा इन जुलूसों में जो है यूज़ हुआ। अंदरून शहर की गलियाँ चूँकि छोटी छोटी गलियाँ हैं और वहाँ पर जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है। इस मरतबा पहली मरतबा लाहौर पुलिस ने 10 मुहर्रम उल हराम के इस मरकज़ी जुलूस को भी ड्रोन कैमरों की मदद से जो है वो उसकी निगरानी की और अंदरून लाहौर की गलियों में ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद जैसे ही ये जुलूस भाटी गेट से बाहर आया तो यहाँ पर लोअर माल पर भी मेट्रो के जो ब्रिज है उसके ऊपर से ड्रोन कैमरे उड़ाए जाते रहे और मुकम्मल तौर पर इस जुलूस की जो है वो निगरानी की जाती रही। जी अच्छा, हमारा में ये बताइएगा कि कराची में जो IG हैं और दीगर आला हुकाम हैं उन्होंने पुलिस को खासा अप्रीशिएट किया है। ज़ाहिर है पुलिस एहलकार जो है उन्होंने बहुत काम किया मुहर्रम के 10 दिनों में, वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। क्या पुलिस में लाहौर पुलिस को भी शाबाशी मिली है? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार जिन्होंने इस जुलूस को सिक्योरिटी फराहम की है उन्होंने नहायत अनथक मेहनत के साथ इस जुलूस को सिक्योरिटी फराहम की है और देखने में भी यही नज़र आता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी इससे पहले नज़र नहीं आई है। जुलूस के रूट को मुकम्मल तौर पर सील रखा गया है। जुलूस के रूट के इतराफ आने वाली गलियाँ और बाजार और सड़कें उनको कंटेनर, बैरियर्स और खारदार तारें लगाकर बंद रखा गया है। किसी को भी बगैर जामा तराशी के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। 3 सिक्योरिटी लेयर्स बनाई गई, जिसके बाद अज़ादरान को जुलूस में शरीक होने की जो है वो इजाज़त दी गई। तीनों सिक्योरिटी लेयर्स पर जो है वो लाहौर पुलिस के जवान तैनात रहे और हर एक आने वाले को जो है वॉक थ्रू गेट से गुजारने के बाद मेटल डिटेक्टर्स के साथ उसकी जामा तलाशी लेते रहे, जिसके बाद अज़ादरान को जुलूस में शरीक होने की इजाज़त दी गई। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वो कंटेनर्स जो लगाए गए थे वो हटा दिए गए हैं। कंटेनर्स हटाने के बाद लोअर माल रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। इसी तरह से सर्कुलर रोड जो कि जुलूस के मेन रूट के बिल्कुल साथ साथ वाली रोड थी, वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए थे। उन कंटेनर्स को भी हटा दिया गया है और वहाँ पर भी ट्रैफिक इस वक्त रवा दवा है। जिस वक्त यहाँ पर जुलूस का इख्तिताम हुआ उसके बाद लाहौर पुलिस की और एलीट फोर्स की गाड़ियों ने यहाँ पर जो है वो गश्त भी किया और यहाँ पर से जो अज़ादरान यहाँ पर मौजूद थे उनको पुरअमन तौर पर मुंतशिर होने में मदद भी फराहम की। जी देखिए, हमार मज़ा लाहौर से अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर से कराची का रुख करेंगे इकरा, क्योंकि सिक्योरिटी की बात हो रही है। कराची की अगर बात की जाए तो पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों को तैनात किया गया था और फौज को स्टैंड बाय पे रखा गया था। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल आज पूरे दिन में क्या रही? ओवरऑल अगर ज़्यादा बात की जाए तो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो कराची में बहुत बेहतर रही है। अगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बात की जाए, पुलिस की जानिब से भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए गए, जबकि
इसके साथ साथ रेंजर्स ने भी। और अगर हम मजालिस और उन जुलूसों की बात की जाए जो इस वक्त हुसैनिया ईरानिया में इख्तिताम पजीर हो गए, उनकी सिक्योरिटी के कुछ मामला जो है इंटरनल मामला खास करके जुलूस के वो स्काउट्स के हवाले रहे, जो रजाकारों के हवाले भी रहे। तो इंटरनल सिचुएशन जो सिक्योरिटी थी उनके तमाम तर मामलात जुलूस में और पूरे वो मुनज़्ज़म रहे, उनको मुनज़्ज़म करने के तमाम मामला रजाकारों के सुपर्द रहे। जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी के दीगर इदारे भी शामिल थे। पुलिस और रेंजर्स ने तमाम तर फराइज़ अंजाम किए। 6000 से ज़्यादा पुलिस के एहलकारों को तैनात किया गया था मुख्तलिफ कराची के मुकामात पर। और ख़ास करके यही उनका जो अहम उमूर था उनके पास, वो यही था कि सिक्योरिटी के मामलात को देखा जाए। तो इस हवाले से अगर हम कहें कि कराची के जो जलसे तमाम जो आज मजालिस हुई और उसके साथ साथ तमाम जो जुलूस निकाले गए, खास करके मरकजी जो जुलूस निकाला गया। इकरा, हमें ये बताइएगा कि कराची के मुख्तलिफ रास्तों को भी बंद किया गया था, कंटेनर लगाए गए थे, क्या तमाम रुकावटें अब हटा दी गई हैं कराची में? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। इकरा, कराची में जो रुकावटें खड़ी की गई थी, कंटेनर्स मुख्तलिफ रास्तों में खड़ी किए गए थे, तमाम कंटेनर्स अब हटा दिए गए हैं। गालिबन इकरा को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। कराची से इकरा मुजाहिद बेग और इसके अलावा लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे अमार मजहर, और रावलपिंडी से हमें अपडेट किया साकिब अब्बासी ने। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।